So I'm trying to start by dividing it into 5 parts. So in the first part, I have the perfect trades. Like these are the kinds of trades that if you see, you instantly go for it. Pre-open market, you just pass your orders, right? The second you come here, and these are the secondary trades. Like these are not as good as the first ones, but these will do the job. And I'll explain you how they are a little bit different. So now we come to part 3. Don't mind these Adani stocks, ये तो बस मैंने मजे के लिए रखे हुए हैं. You come here, you have Beast of Judge. These are unsuccessful trades. Like I think I had a loss on Beast and Just Dial. Miril, I broke even, and these two I just found while trying to make the video, while trying to make some notes. So I try to use them. Then here you have these are basically my backup. Like if you don't get this, these are backup stocks. And the fifth part, these are I've just kept them for taking some notes. These will help you make your trades easier. Okay, so so far so clear. So now Yeah. Yeah. uh, so now one thing, please, मैं थोड़ा गजनी टाइप का हूँ. So remind me if any moment you think why I have these indicators, where are they useful? Just remind me. I'll explain it to you. So first, let's start with HFCL. HFCL for 27.5. आई मेड बहुत पहले का ट्रेड है. मैं एक दूसरे दोस्त को समझा रहा था तो वहीं से मैंने निकाल लिया. 27.5. या 27.5. So see what I do is, let's say I'm trading today. अभी तक मार्केट खुला नहीं है. This is 15th of July. I'm trading today. I go to downloads. As you can see, I have downloaded 15th, जो कि मतलब कल का ट्रेड हुआ था. Which is today is what day भाई? टुडे इज ट्यूसडे. मतलब 15th को जो मैंने डाउनलोड किया वो मंडे का ट्रेड है, एंड 14th जुलाई का है जो वो कि फ्राइडे का ट्रेड है. नाउ फॉर ट्रेडिंग टुडे आई वोंट यूज 15 जुलाई जो कि कल है. आई विल यूज 14 जो कि परसों का है. I'll tell you why. Now you open this, you come here. Now as you can see, I have it in sort according to largest to smallest, the change percentage. Now I come here. Now what I do is basically one by one I take these stock and I copy them. Yeah, it looks like, yeah. And I just, basically just copy and search for them. Also, one more thing I have to do is, because I'm trying to do intraday, so I'm trying to take leverage, shorting ho, going long ho, kuch bhi ho. You have to look for MIS. Yeah, you look. There is leverage. If there is no leverage, then there is no point. You can't trade. So that's done. This is the simple part. Now let's come to finding the main thing. HFCL 27.5. Let's come here. HFCL 27.5. See why I used it. क्योंकि मेरा trade जो हुआ है वो 27th को है, right? And it was a top gainer on 25th. So there is 26 in the middle. Now one thing, see, जब any time that I'm looking at a top gainer, यहाँ पर जो volume है, this is obviously high. So you can't exactly predict what will happen. Like 26 को ना कुछ भी हो सकता है. Maybe there is some external factor. Maybe some कोई pump कर रहा है. Maybe कुछ भी हो रहा है. Maybe some institution is pushing this. Maybe FII buy करेगा बाद में. कुछ भी हो सकता है. So you try to avoid the next day. क्या होता है कि even if I shorted this on the second, I would have had a very good profit, right? But it's better to avoid क्योंकि बहुत time, in fact, like 50-50 हो जाता है. कभी उड़ जाता है, कभी गिर जाता है. So try to avoid. Bro, maybe your voice is muted. It's not. It's not. I can hear it. We We can can hear hear him. you. What? Should I continue? Yeah. Yeah, continue. Okay, so to come here, now you try to avoid this because यहाँ पर देखो, you can see there is a slight upward movement, right? अभी next day पे थोड़ा सा हल्का सा gap up open हुआ है. अभी ये ऊपर भी जा सकता था, नीचे आ गया, forget that. You come to the next day, ठीक है? Now this is the perfect opportunity because as you see, ये जो top gainer है, what is this date? 25/5. 25/5 को one day का candle देख लेते हैं. 25/5. Where is it? As you can see 25/5 पे it is pretty much at it's very high. Like दूर दूर तक कोई, like there is no, मतलब there is no comparison. दूर दूर, it is pretty high. So the chances of it falling down are much higher. Go back to 25/5. Now you come here. Now you see it fell down. Now two things you have to note. First, it fell down beyond this.
कि जहां पर अगले पिछले दिन का क्लोज हुआ था इट फेल लोअर देन दैट व्हिच मींस देयर इज अ स्ट्रांग वीकनेस टू इट. सेकेंडली यू डोंट सी मच रेजिस्टेंस जो मच फ्लैटनेस हियर जो कि मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा व्हाई. It fell down straight up. Now this is a very clear opportunity. And thirdly, if you can see where it closed, see once this stock has turned bearish, जो कि हुआ है अभी because of top gainer हुआ, then a lot of देखो तुमको bull की तरह सोचना होगा. As a bull, would you buy it? Because ये already swollen है, जिनको profit book करना था वो अभी book करना start कर चुके हैं. People are selling it away. As a bull, would you really want to enter this? You won't, right? और तुमको ये देखना है कि इनिशियल लेवल कहाँ है जो कि यहाँ दिस इज द इनिशियल लेवल. थोड़ा पहले भी जाओ तो you can ignore this 45. Let's say 45 is the initial level before this. Now where is this? This is 47.50 पकड़ लेते हैं 47.50. So it's not clearly at this. So you can expect the stock to come somewhere near or at least थोड़ा तो गिरेगा ही. सो नेक्स्ट डे व्हाट यू डू इज मार्केट प्री ओपन मार्केट पे तुम दे दो. ठीक है, प्री ओपन मार्केट पे यू गिव एन ऑर्डर, यू पास इट, मे बी थोड़ा तुम बाद में रखते हो, थोड़ा यहाँ पास करते हो. दैट्स व्हाट आई डू. So you can slowly do that and you can wait. It will fall, it will always fall, trust me. Maybe yes, maybe you won't get this large movement कि यहाँ गिरेगा, maybe यहाँ ऐसा लंबा वाला movement नहीं गिरेगा. But if you do this exact thing every single time you will not have a loss. This is मैंने बार बार किया, ये रोज होता है, trust me. ये मेरा 100% सक्सेस रेट है इस पे. मे बी इट इज नॉट एज लार्ज बट अगर लेवरेज यूज करते हो तो अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा. उसके बाद लेट्स गो टू Hudson. Hudson, I guess this is Monday's trade. Yeah, Monday's trade. As you can see, it is quite similar. सेम मैंने यहाँ को देखा, ये है, यहाँ देखो वीकनेस आया, ये आया, एंड वी ऑल नो व्हाट हैपेंड टू दोस टू ग्रेट कैंडल्स जो कि आए थे. बहुत मजा आया था, पूरा निफ्टी को दो बड़े बड़े लाल कैंडल मिले थे. यहाँ हुआ, बट इवन इफ यू इग्नोर दिस यू कैन सी दैट देयर इज अ डाउनवर्ड ट्रेंड. अगर ये भी छोड़ देते, यहाँ भी ऑर्डर पास करते तो थोड़ा प्रॉफिट मिल जाता. मे बी इट्स नॉट एज लार्ज बट वी विल ऑलवेज सी अ प्रॉफिट. लॉस तो नहीं होगा, आई गारंटी यू दैट. Second, let's come to DCB Bank Incorporate Credit Account. Now these are secondary, like these are not as perfect as these क्योंकि तुमको first ये वाला you don't see this weakness movement after the getting the top gain. Hudson, ये देखो, as you can see it was, you can see that right, there is a certain weakness. As a bull you would think कि अभी जो मेरा पैसा लगा था let's try to exit that. अभी मेरे को profit book करना है क्योंकि it has started falling. So once that momentum starts, it's really hard to stop. Now let's come to here, DCB Bank. अभी DCB Bank का मेरा मंडे का ट्रेड था. I think so, yes. Now I'll try to explain how is it as a secondary. देखो, firstly ये जो हुआ यहाँ तक ठीक है as a top gainer, but second, first let's see. You see ये जो दो बड़े बड़े लाल रेड कैंडल है, let's say it never happened because we all know it was abnormal. Let's say हुआ भी, let's, it does not matter really क्योंकि if you see here, you see it's quite flat. But लास्ट में जो वीकनेस भी रेडी हो रहा है, it's not as close to this or this. It's not really showing a weakness. But let's say positively कि तुमको लग रहा है कि ये गिरेगा, तुम्हारी तरफ से मैंने दे दिया कि तुमको लग रहा है ये गिरेगा, ठीक है, because it is not as perfect as this. And you know that for certain it is not as perfect क्योंकि इसमें और इसमें फर्क है, इसमें और इसमें फर्क है, you know that. So you come here, it was DCB Bank. So you come here, now you don't pass it in pre-open market. Now you wait maybe 1 or 2 minutes क्योंकि ये थोड़ा ऊपर गया, ये थोड़ा नीचे गया, वो तुम थोड़ा ओपन मार्केट को थोड़ा जाने दो. जैसे ही थोड़ा वॉल्यूम घटेगा देन यू पास योर ऑर्डर. नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो. एनी टाइम देयर इज अ बियरिश मार्केट, मतलब एनी टाइम थोड़ा बियरिश हो जाता है एक स्टॉक, वो फर्स्ट 2-3 कैंडल में दिखा देगा, इट विल शो. once you have entered, let's say 100, I think I entered here at 112.5, ठीक है, 112.5, and I saw कि बहुत देर तक it is being flat. It is, trust me, it is always better to exit. Maybe थोड़े देर बाद it starts falling, then you re-enter lower price पे, profit कम होगा, but बहुत सारे chances है कि it might go up a little, जैसे कि यहाँ हुआ है again. You see this again, you see flatlining, this comes close to the previous day's high. There is a strong resistance. Like, let me zoom in, wait, use clean.
Yeah, you can see there is a strong resistance जो कि पिछले डे के हाई पे था. So starts looking like इससे ज़्यादा नहीं जाएगा. Now you come जब जब कभी भी यहाँ आ रहा है ना, you can start see that मतलब एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है. So here somewhere around here you can enter again 12.50 जो कि ओपन प्राइस पे ही था, तुमको ओपन प्राइस पे मिल रहा है. एंड यू कैन स्कैल्प अ लिटिल, थोड़ा तो प्रॉफिट हो ही जाएगा. बट देन दिस इज सेकेंडरी. ये मतलब उतना परफेक्ट नहीं है ट्रेड. परफेक्ट इज ऑलवेज दैट इज डिफरेंट. उस पे तुमको 20% 15% ऐसा प्रॉफिट मिल जाएगा. सेकंड, लेट्स कम टू हिंद कॉपर. आई थिंक देयर वाज अ डेट फॉर दिस. हिंद कॉपर 14.6. 14.6, yes, 14.6. now yes, look at this. अभी हिंद कॉपर पे आई थिंक देयर वाज क्रैमर शॉर्टेड दिस ऑन हिंद कॉपर, से इसीलिए मैंने देखा था. नाउ सी दिस इज वेरी कॉमन कि हम लोग देखते हैं देयर इज ऐसा एक आता है कि बस या फिर बस एक कैंडल एकदम वर्टिकली उड़ जाता है. सो सबको लगता है कि ये तो पिछले दिन पंप हुआ है, ये अभी मैं शॉर्ट करूंगा. दैट इज वेरी कॉमन, वेरी नेचुरल. बट आई वुड रियली नॉट सजेस्ट टू डू दैट बिकॉज ऑफ टू रीजंस. वन, आई हैव सीन दिस सेवरल टाइम्स कि जब होता है वर्टिकल उठता है, उसके बाद गैप अप ओपन हुआ एंड इट स्टार्ट्स गोइंग अप और इट स्टार्ट्स गोइंग डाउन, या फिर गैप अप नहीं हुआ, थोड़ा गिरा, फिर ये पॉइंट देख रहे हो, इसके बाद फिर उठने लगता है. आई हैव सीन दिस सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स, आई स्वेयर. सो अगेन वही करो, ये छोड़ दो, अगला दिन छोड़ दो, प्रिडिक्ट मत करो. नेक्स्ट डे यू सी दिस डाउनवर्ड मूवमेंट, स्लो ट्रेंड्स, थोड़ा सा हो गया स्टार्ट, तुम मार्केट ओपन पे शॉर्ट कर दो या फिर थोड़ा वेट करो, फर्स्ट कैंडल छोड़ दो, शॉर्ट करो. देयर यू गेट फ्रॉम 116 166 टू 162, 4 पॉइंट्स, दैट्स 4 पॉइंट्स प्रॉफिट. उस पर तुम लेवरेज लगाओ, कितना भी पैसा लगाओ, यू गेट अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम दैट. दिस इज अगेन सेकेंडरी. फर्स्ट नहीं मिला तो दिस विल वर्क, दिस विल ऑलवेज वर्क. But you should and this create account. Now this is very special because pay attention, because this is very different from the first two. This is for 8.6. See, ये क्रेडिट अकाउंट अगर हम लोग 8.6 पे आ गए, so if you see 8.6, see this is perfect. Again ये थोड़ा हुआ, we see the weakness, it has fallen from there, यहाँ भी गिरा, there is perfect weakness. Now one very simple reason why I would really suggest कि अगर ऐसा हो रहा है, you will short. Obviously, this 99% first case कि तुमको इसमें profit एकदम perfect है, तुमको short करना है. But one thing I will suggest कि you can wait a few minutes or one candle, क्योंकि उसके बाद भी होना है. थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुमको लॉस हो सकता है. ऐसा है कि मे बी यू कैन गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये जो ऐसा होता है कि ये जो लेवल नहीं आ रहा है ना, ये लेवल ऐसा बहुत बार होता है कि ये भी छोड़ दो, अगर थोड़ा-सा भी लेट्स से यहाँ तक आया, यहीं पर मार्केट क्लोज़ हो गया, यू सी दिस वीकनेस, थोड़ा-सा वेट कर लो, मे बी यू विल गेट अ बेटर प्राइस. नहीं हुआ तो थोड़ा कम प्रॉफिट होगा, बट लेट्स वेट. अगर अपॉर्च्युनिटी आया तो नहीं आया, नहीं आया तो नहीं आया. क्योंकि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ टाइम्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी टेक्स ओवर, एंड स्पेशली these पेपर हैंड्स एंड people who are trying to be new. There was this guy who was saying this especially for him, क्योंकि if you are new ना and if you have entered here and it starts going up, even though back of your mind analysis तुमको पता है कि second candle पे गिर ही जाएगा, maybe you exit, maybe थोड़ा सा भी, क्योंकि हो सकता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी टेक्स ओवर एंड मे बी यू एग्जिट, वो लॉस हो सकता है. सो इट्स बेटर थोड़ा वेट कर लो. लेट्स से तुमने पूरा कैंडल ही वेट कर लिया, यहाँ पर भी तुम एंटर करते हो ना, ये फ्रॉम 727 से कहीं भी तुम एक 710 तक यू गेट 17 पॉइंट्स. अगर इस पे थोड़ा कम भी इस पे थोड़ा कम भी प्रॉफिट, मगर हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा. ठीक है, इफ यू जस्ट फॉलो दिस, मे बी यू वोंट गेट दिस लार्ज गेन और दिस लार्ज गेन, बट यू वोंट गेट अ लॉस एंड एक कांस्टेंट प्रॉफिट होगा. और उस पे लेवरेज लगाया तो अच्छा कांस्टेंट प्रॉफिट. दिस इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, यू आर लुकिंग फॉर कंसिस्टेंसी. दिस इज हाउ आई मेड इट. नाउ ये तो अदानी, ये तो मजाक हो रहा है, ये देख लो यार, ये तो मजाक हो रहा है, ये तो नहीं हटेगा. अभी बी सॉफ्ट पे आ गए. नाउ दीज आर ऑल अनसक्सेसफुल ट्रेड्स. बी सॉफ्ट पे मेरा लॉस हुआ, जस्ट डायल पे मेरा लॉस हुआ, मेरे आई थिंक आई ब्रोक इवन, आई एम नॉट, आई डोंट रिमेम्बर. ये दोनों तो अभी थोड़ी देर पहले निकाले. नाउ बी सॉफ्ट, दिस आई थिंक दिस वाज वन ऑफ माय लार्जेस्ट लॉसेस. बी सॉफ्ट फॉर कब आया भाई, 26.5. Yeah, this is why I kept it, because I think this was my largest loss. Now see, this is the prime mistake. अभी देखो 26.5 का मेरा ट्रेड है. सो यू सी फर्स्ट डे
फर्स्ट डे जो है ये ठीक है, ये थोड़ा गिरा बट दैट डज नॉट मैटर। ओवरऑल गैप अप ओपन हुआ, ये टॉप गेनर रहा। नाउ इफ यू कैन सी, थोड़ा ओपन हुआ, हाई हुआ, देयर इज अ स्लाइट वीकनेस। अगर ट्रस्ट मी, अगर मार्केट यहीं ओपन हुआ, मार्केट यहीं क्लोज हो जाता, सो इट वुडंट हैव बीन दैट बैड ऑफ अ सिचुएशन टू मतलब बंद करने के लिए। क्योंकि एक्चुअली क्या होता, अगर मार्केट यहाँ क्लोज होता तो ये जो मूवमेंट है ना, ये थोड़ा और पहले दिख जाता, क्योंकि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर दिस। अभी पता नहीं मेरे को चूतिया मैं क्या दिमाग में आया कि आई शॉर्टेड हियर, आई थिंक आई शॉर्टेड समवेयर अराउंड हियर एंड आई हैड अ लॉस। आई थिंक मैं एग्जिट यहाँ किया था, मैं पता नहीं क्या हुआ था, पागल हो गया था मैं। So I exited here. Now you have to learn few things. First, weakness is not good enough. Second, यहाँ पर let me show this clean. यहाँ पर ये सपोर्ट फॉर्म हो गया, ये धीरे धीरे अपवर्ड मूवमेंट हो गया। सो फ्रॉम ऑल साइड्स इट इज अ नो नो, दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो, ये कभी नहीं करना है। बिकॉज बहुत टाइम होता है यू गेट टनल माइंडेड कि दूसरे स्टॉक्स मिल नहीं रहे, यहाँ तुमको टॉप गेनर दिखा, ये थोड़ा सा दिखा, एंड यू थिंक कि अरे ये तो है, फिर यहाँ से ऐसा धीरे धीरे गिरने लगेगा। मगर डोंट डू दैट प्लीज, आई हैव सीन इट, आई हैव डन इट माई सेल्फ। उसके बाद जस्ट डायल पे आ जाते हैं। नाउ जस्ट डायल इज आई थिंक फॉर 31.5, 31.5, yes 31.5। see, this is slightly weird because क्या होता है ना, एज आई टोल्ड ना, मैंने दिखाया कि बहुत बार होता है कि हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट जो आया उसके अगले ही दिन मतलब बहुत गिर गया, मगर हम लोग थर्ड डे का वेट किया तो लॉस मतलब प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ। सो बहुत टाइम ग्रीड टेक्स ओवर, जैसे मेरे साथ भी हुआ था। सो आई थॉट कि ये तो उठा है मगर देयर इज अ वीकनेस, सो मे बी नेक्स्ट डे जो भी ओपन हुआ उसके बाद गिरने लगेगा, आई टेक द बिग प्रॉफिट। मैंने वही सोचा मगर नहीं हुआ, इसीलिए आई शोड यू द एग्जांपल। ये एवरीथिंग एल्स डज नॉट मैटर। तुमको क्या दिख रहा है कि यहाँ अगर इफ आई ट्राई टू शॉर्ट मेरा लॉस हो जाता, ठीक है। ये चीज याद रखो, ये देख रहे हो अभी ये सेम सेम पे देख लो, हडसन पे देख लो, सी इट्स नॉट मच डिफरेंट फ्रॉम दैट, इट्स नॉट। अभी ये नीचे आया, दैट्स वाई थर्ड डे पे किए, अगर ये नहीं आता तो ये ऊपर भी जा सकता था। एच एफ सी एल पे जो डेट है आई थिंक दैट इज क्लोजर, एच एस सी एल पर 27.5, यस 27.5 को ये है। अभी देखो ये इसमें और उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है बिकॉज दीज आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। इसीलिए आई एम सेइंग कि सेकंड डे को छोड़ दो, तुम थर्ड डे को ट्रेड लो। रिमेंबर दिस, ये जो आया फिर थर्ड डे को इट वाज जस्ट डायल राइट, थर्ड डे को जस्ट डायल 31.5, यस देख लो, इट्स नॉट मच डिफरेंट। इनफैक्ट इसमें तुमको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि यहाँ वीकनेस भी दिखा है। तुमको लग सकता है कि अरे रेड इतने कैंडल आ गए कि इसके बाद तो गिरना है, अगर और बहुत सारे चांसेस है कि नहीं भी हो सकता है, इसीलिए तुम थर्ड डे का ट्रेड ले लो, वो बेटर होगा। और फिर लेट्स गो टू मेरिल। नाउ दिस इज अ वियर्ड स्टॉक, ये स्टॉक ही वियर्ड है, ट्रस्ट मी। 28.5 मैंने बहुत ऑब्जर्व किया इसको। Whose mic is that? Zenga, can you please mute? अरे Zenga, भाई, thanks. thank you. Okay, I'll continue. Where was I? Merrill, yes. 28.5. चुप करो, VC था अच्छी। 28.5. Yes. Look at this trade. Very weird trade. See, first day you get this top gainer. Top gainer हो गया. Next day you see the weakness. You see a perfect weakness. But there's one problem. ये जो weakness है, इसका तुम super trend देखो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैं बार बोल रहा हूँ कि मेरे को इंडिकेटर याद दिला दो। इसका सुपर ट्रेंड इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज नॉट एज गुड एज जो कि कंपेयर टू, मैं दिखा रहा हूँ, हेडसन वाज द क्लोजेस्ट राइट, यस ये देख लो, यू कैन सी दिस। इनफैक्ट हेडसन ने HFCL का दिखा देते हैं, HFCL 27.5, 27 भाई तुम लोग को याद हो गया, देख लो, यू कैन सी द डिफरेंस। इसका जो डिफरेंस है और मेरिल का जो डिफरेंस है, अरे यार गजनी हूँ मैं, बता रहा हूँ मैं गजनी हूँ। कैन यू सी दैट डिफरेंस?
समझ आया? अरे कहाँ गया यार, हाँ ये रहा। कैन यू सी द डिफरेंस? समझ आया अभी? दैट इज वाई। और ये तुम एज अ चार्ट भी देख लो तो यू कैन सी दिस इज मच मोर फ्लैटेंड। वो उनके तरह ये वीकनेस गिर नहीं रहा है, दिस इज मच मोर फ्लैटेंड, यहाँ के एक रेजिस्टेंस भी फॉर्म हो गया। सो थर्ड डे को ना it is better to not trade. Maybe if you take a trade you get lucky, गिर गया, but it is better to not take the trade। थोड़ा वेट कर लो, थर्ड डे भी वेट कर लो उसके बाद, और इनफैक्ट यू कैन कीप दिस एज वॉच लिस्ट पे रख दो। अगर तुमको लग रहा है कि यहाँ गिरने लगा, ये इस एक मतलब सपोर्ट ब्रेक होने लगा, 250 क्रॉस होने लगा, सो यू कैन टेक अ पोजीशन, तब ले लो। बट डोंट थिंक कि मेरे को इसी में ट्रेड करना है, क्योंकि वो अनसक्सेसफुल होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। क्योंकि यहाँ जो हो रहा है ना, सोचो यहाँ जो आया, यू कम हियर, देन इट स्टार्ट्स गोइंग अप, ऐसा हो सकता है, जो कि एक्चुअली हुआ भी है, बट थोड़ा अगले दिन, दैट डज नॉट मैटर। नाउ TV18 ब्रॉडकास्ट, TV18 ब्रॉडकास्ट भाई, अच्छा तो ये रिसेंट होगा, यस। अभी देखो, जो क्रैमर ने शॉट किया उसके तरह ही है। जो क्रैमर ने शॉट किया था, हिंद कॉपर, हिंद कॉपर देख लो, एग्जैक्ट उसके तरह नहीं है, बट उसके तरह ही है। यू गेट द बेसिक आइडिया। इनफैक्ट ऐसा सीधा वर्टिकल भी चला गया ना, तो क्या हो सकता है, अभी देख लो। सेकंड डे ऐसा वेट किया, बट दैट्स द प्रॉब्लम, ये जो आ रहा है ना, ये वीकनेस देख रहे हो, ये नहीं होता, ऐसे नहीं चलेगा, ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे नहीं होता, ये पूरा फ्लैट लाइन हो गया, ये रेजिस्टेंस, ये मतलब सपोर्ट फॉर्म हो गया पूरा। सो सेकंड है, ये तो दो बड़े कैंडल, ये तो मतलब इग्नोर कर दो, ये थैंक्स टू अदानी बाबा, उनके लिए तो छोड़ दो, ये अब नॉर्मल है। इसके बाद अगर तुमने शॉर्ट किया होता तो लॉस हो जाता, बिकॉज यू रियली, देखो बहुत छोटा बहुत माइन्यूट लग रहा है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो चीज है ना, तुमको कभी ये नंबर वन पे नहीं दिखेगा, तुमको कभी हडसन पे ये नहीं दिखेगा। कैन यू सी, ये नीचे की तरफ ही जा रहा है, या फिर तुम क्रेडिट अकाउंट पे चलाओ, ये देखो यहाँ ऐसा भी, ये भी देख लो, ऐसा नीचे ही जाएगा वो, इसके तरह, TV18 की तरह ऐसा फ्लैट लाइन नहीं होगा, एंड की तरफ तो कतई नहीं होगा, क्योंकि एंड की तरफ मार्केट एंड पे ज्यादातर लोग एग्जिट कर ही देंगे। अगर वहां भी एग्जिट नहीं हो रहा, मतलब देर इज स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म बाइंग। सिर्फ इंटरडे नहीं और इंटरडे के बंदों को एग्जिट करना ही है, स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म बाइंग है, तो उतना चांसेस मत लो, बुल की तरह सोचो, इफ थिंक एज अ बुल टू शॉर्ट, क्योंकि 90% लोग लॉन्ग ही जा रहे हैं, तो उन्हीं की तरह सोचना पड़ेगा। बी जमना टू डू हैव अ डेट फॉर दिस, यस 24/5, 24/5, यस 24/5, यस। हाँ देख लो, मे बी दिस इज नॉट एज सिमिलर टू दैट। एंड इनफैक्ट द फनी थिंग इज, मैंने ये क्रैमर के शॉट की तरह सोच लिया था, एंड आई गॉट इट एट 81.65। आई थिंक आई कैन शो यू द ऑर्डर, मैंने निकाल कर रखा था, पिक्चर्स, डोंट डॉक्स मी गाइस, डोंट डॉक्स मी। No, यस, that's fine. हाँ देख लो, 3500, 80.65 पे बाई था, 81.65 पे मैंने शॉर्ट किया था। आई रियली गॉट लकी, बट ऐसा नहीं मत करो, क्योंकि इफ आई हेल्ड ऑन टू दिस आई वुड हैव हैड अ लॉस। मैंने फर्स्ट कैंडल पे ही मेरे को लगा कि अभी निकल जाना चाहिए, मेरा टारगेट हो गया था, मैं निकल गया, बस आई रैन अवे। बट अगर मैं थोड़ी देर बाद निकलता तो मेरा लॉस हो जाता, इसीलिए इट्स बेटर टू अवॉइड, क्योंकि देख लो सेम चीज है, सेम आई गॉट ग्रीडी, ये मेरा किस्मत साथ दे दिया, ये अलग बात है। इट्स बेटर कि ये दिन छोड़ दो, तुम अगले दिन देखो, क्योंकि अगले दिन तुमको दिख ही जाएगा कि ये फ्लैट लाइन है, यहाँ पर कोई वीकनेस भी नहीं दिख रहा, ना ये लाइन क्रॉस हुआ है ना ये लाइन क्रॉस हुआ है, सो इट्स बेटर टू नॉट ट्रेड। उसके बाद देख लो उठ ही गया है, तो ये मेरा लक साथ दे दिया, बट ट्राई टू अवॉइड दिस। नाउ नंबर 4, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज क्योंकि बहुत टाइम होता है कि मार्केट अगर फुल बेरिश जाता है ना, तो अगर सोच लो 2-3 दिन बेरिश चला गया, ये तुमको स्वोलन स्टॉक्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, स्वोलन स्टॉक्स तो भूल ही जाओ। और ये वाले सेकेंडरी स्टॉक्स भी मिलने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि मतलब फॉर दिस टू हैपन देयर हैज टू बी अ स्वोलन स्टॉक, मतलब थोड़ा तो आउट ऑफ पोजिशन जाना है। सो नाउ यू हैव टू कम टू दीज आर योर बैकअप ट्रेड्स। अगर फर्स्ट और सेकंड नहीं हुआ, नाउ व्हाई आई एम कॉलिंग दिस बैकअप ट्रेड, सी इवन इन पे मेरा 100% सक्सेस रेट ही है, 100 नहीं तो 99 तो होगा ही, बट these I cannot call number one because I do not have enough data backing this.
ये जो है ना, ये नंबर 1, नंबर 2, इस पे मेरा मंथ्स एंड मंथ्स एंड मंथ्स आई कैन शो यू माय एंटायर ट्रेड बुक। मैं अपने सारे ऑर्डर दिखा सकता हूँ, मगर इन पे मैं नहीं दिखा सकता। सो आई कैन नॉट से दैट दिस विल वर्क एनी टाइम, मैं खुद की गारंटी से नहीं बता सकता। यहाँ पे आ जाते हैं देख लो, ये हुआ। सी दीज आर बैकअप ट्रेड्स। आई वुड सजेस्ट कि फर्स्ट और सेकंड है तो इनके लिए मत जाओ, ये बात के लिए। देख लो अपर सर्किट, उसके बाद देख लो थोड़ा वीकनेस फॉर्म है। सेकंड डे यू वेट, यू सी फॉर एन अपॉर्चुनिटी। ये देख लो, ये ऑलरेडी येलो, सुपर सुपर ट्रेंड का येलो चला गया, मतलब इट हैज गॉन टू अ बेरिश साइड। सो ये देख लो, थोड़ा वेट कर लो, एज यू सी इट स्टार्ट्स फॉलिंग हियर, you तुम थोड़ा प्रॉफिट ले सकते हो, ये तुम कर सकते हो। यहाँ नहीं करना है, ये वाला दिन तो भूल ही जाओ, यहाँ नहीं करना है, क्योंकि फिर से अपर सर्किट हिट कर ही सकता है। सेकंड डे तुम देख रहे हो कि अच्छा अब तो अपर सर्किट और नहीं हिट कर रहा है, यू कम हियर, यू सी दीज लेवल्स, बेयरिश टर्न हो चुका है, इट स्टार्ट्स फॉलिंग, यहाँ तुम एक छोटा सा पोजी लेके थोड़ा सा प्रॉफिट कर सकते हो। यू नो दिस आर मतलब बैकअप है कि दिन तुमको जीरो नहीं करना है, तुम थोड़ा निकाल सकते हो। IRB, डू आई हैव अ डेट? अरे IRB 46 46 46 46 46, यस 346। अभी देख लो, ये जो था ये सेम है, ये वो है, इनफैक्ट ये नंबर वंस के बहुत क्लोज है, बट द ओनली रीजन इज कि यहाँ देख लो, ये जो लेवल्स है ना, ये थोड़े गड़बड़ लग रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट था, उसके बाद वीकनेस आया, और ये थोड़ा लेट आया, उसके बाद ये है। सो मतलब मेरे को पर्सनली मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि शॉर्ट करने से लॉस होगा, ज़्यादातर ऑलवेज प्रॉफिट ही होगा। बट आई वुड सजेस्ट कि नंबर 1, नंबर 2 है तो डोंट गो फॉर दिस, क्योंकि ये मूवमेंट के बाद ना ये जो है, दिस कैन ऑलवेज टर्न अराउंड वेरी सून, ट्रस्ट मी। बिकॉज़ अरे ज़ूम करो थोड़ा। बिकॉज़ ऑफ दिस मूवमेंट, यहाँ जो वीकनेस है ये बाद में आई है, इसके बाद दिस कैन टर्न अराउंड वेरी क्विकली। अगर अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा है इस चार्ट पैटर्न के बारे में तो पूछ लो, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। जिंदल सॉ, लेट्स कम टू जिंदल सॉ। डज एनीवन हैव एनी कंफ्यूजन्स और एनी इंडिकेटर या कुछ भी पूछना है पूछ लो। About indicators, could you like explain the ones below? Eller Yeah, okay. Fisher and Okay, how do so you use them for your trades? ओके, सो तुमको नंबर 1 ही से दिखा देते हैं, या कहीं से भी दिखाते हैं, डज़न्ट मैटर, सब पे काम करता है। का अरे भाई जिंदल सॉ ही देख रहे थे ना, कहाँ गया? हाँ जिंदल सॉ, यस। सो लेट्स कम हियर, एक्चुअली लेट्स शो यू सक्सेसफुल ट्रेड ना, इजियर होगा। अभी यहाँ पे देख लो, एलर फिशर इज मोर लाइक अ ब्रेक, मतलब कैसे होता है, एलर फिशर अप्स एंड डाउन्स में ना तुमको मूवमेंट मिल जाएगा। जैसे कि ये जो अप मूवमेंट है, ये नेसेसरी नहीं है कि इट विल स्टार्ट फॉलिंग, बट ऐसा फिर डाउन हुआ, फिर थोड़ा थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, फिर ये अप एंड डाउन होते रहते हैं। दिस इज गुड फॉर स्कैल्पिंग, नंबर 1, एंड नंबर 2, दिस इज ऑल्सो गुड फॉर बीइंग अहेड ऑफ द कर्व। इन द मार्केट टाइमिंग इज एवरीथिंग, तुमको अपॉर्चुनिटी लेना है। सो MACD जो है ना, MACD इज फार मोर एक्यूरेट, इट इज फार मोर एक्यूरेट, बट द वन प्रॉब्लम इज, इनफैक्ट ऐसे में तो मत करो, ये तो पूरा टॉप गेनर चला गया, ऐसे में तो MACD यूज मत ही करो। लॉन्ग टर्म पे इट इज मच मोर सक्सेसफुल, मतलब अगर तुम 1 डे के कैंडल्स देखो, इस पे तुम एकदम ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हो, इस पे तुम ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हो। मगर तुम ये जो इस पे आ गए, अभी नाउ व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज, टॉप गेनर हो गया, इसको तुम छोड़ दो, तुम RSI की वैल्यू भी देख सकते हो, बट मैं 50 की कैंडल्स यूज करता हूँ। सो यू कैन कम हियर, अभी तुम ये वाला को ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये ऑलरेडी टॉप गेनर है। सेकेंड डे पे इफ़ यू रियली थिंक दैट इट्स अ रिस्क, यू कैन वेट फॉर दिस। यू कैन सी कि एलआर फिशर अब डाउनवर्ड ट्रेड में है, MACD भी अभी ब्रेक पे आ रहा है, यहाँ पर एंटर करो, इट विल गो। अभी RSI आई यूज 50, क्योंकि इससे थोड़ा मतलब कम भी यूज करो ना तो इट गेट्स वेरी सेंसिटिव, एंड आफ्टर अ पॉइंट इट बिकम्स यूजलेस, जबकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी बढ़ जाता है ना, तो RSI यूजलेस हो जाता है। 50 इज लाइक परफेक्ट फॉर मी। इनफैक्ट ये वाले ट्रेंड्स नहीं, इफ यू मतलब ये तो एकदम टॉप गेनर्स हो गए ना। इफ यू आर ट्राइंग टू स्कैल्प, इफ यू आर रियली ट्राइंग टू मतलब दिन पे बहुत सारे स्टॉक्स वॉच लिस्ट पे रख लिए, और मतलब इफ यू आर ट्राइंग टू गेट अ जस्ट थोड़े पैसे कमाने हैं, देन यू कैन लुक एट दिस। जैसे कि ये देख लो, ये जस्ट डायल है नेक्स्ट दिन, यहाँ तो नहीं दिखाएगा तुमको, यहाँ दिखाएगा। अभी यू कैन सी दिस राइट,
ना ऑब्वियसली जो कोई भी एमएसीडी वेव की तरह जाएगा और आरएसआई भी देख लो तो एट दिस पॉइंट 40 पे है विच इज क्वाइट लो राइट 40 पे है विच इज क्वाइट लो यहाँ भी देख लो एक कर्व आ रहा है सो यहाँ उठने के चांसेस हैं तो यू कैन टेक दिस चांस यू कैन गो अप उसके बाद तुमने देख लिया कि ओ भाई ये भी क्लोज आ रहा है कि मेरा अब तो लॉस हो सकता है इट्स बेटर तुम इसके ट्रेंड पे देख के तुम एग्जिट कर लो एलर फिशर के क्योंकि एमएसीडी इज एक्यूरेट मोर एक्यूरेट बट वो थोड़ा स्लो होता है और दिस इज ऑलवेज बेटर स्पेशली इन लार्ज कैप स्टॉक्स ये थोड़ा और यूजफुल है मिड कैप पे थोड़ा कम यूजफुल है मगर यू कैन ट्रेड अभी यहाँ देख लो ये अप्स एंड डाउन्स पे है बट वन थिंग आई वुड से एमएससीडी पे अगर तुमको ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होता तो लॉस भी नहीं होगा क्योंकि इट क्लियरली शोज ये भी देख लो यहाँ तुमको एग्जैक्ट टाइम फ्रेम पे तो मतलब पहले से तो नहीं दिखाएगा बट लेट्स से यहाँ पर देख लो यू कैन सी एलर फिशर गिविंग अ अपवर्ड कर्व अगर तुमको सच में इन इंडिकेटर्स पे देखना है तो यू हैव टू फोकस ऑन एलर फिशर मोर क्योंकि दिस विल गिव यू द परफेक्ट टाइमिंग व्हेन टू टाइम दिस एमएससीडी विल गिव यू द गुड डायरेक्शन बट एलर फिशर तुमको ये देगा अभी तुम यहाँ पर कहोगे कि यहाँ तो एमएससीडी सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि यहाँ दिखा रहा है कि डाउन बट ये तो फ्लैट रह गया उसके बाद जो एमएससीडी दिखा है उसके बाद उठा नाउ यू हैव टू रियलाइज वन थिंग ये जो जस्ट डायल का जो स्टॉक था ना पिछले दिन इतना ऊपर गया ठीक है उसके बाद दिस इज इन अ वेरी गुड बुल पंप तो एमएससीडी तुमको सही दिखा रहा है रीडिंग वो इसके साथ सिंक नहीं हो रहा है बिकॉज जस्ट डायल इज इन अ डिफरेंट लेवल आरएसआई भी देख लो ठीक है आरएसआई भी देख लो इट इज नॉट ओवरबॉट बट हाई है सो इसको इसको एग्जैक्टली नहीं यूज कर सकते मगर अगर तुमने सोचा कि इस लेवल पे कि अगर ब्रेक हो रहा है लेट्स से 996 टू 990 इसके बीच में कहीं भी तुमने शॉर्ट कर दिया इसके बाद यहाँ भी अगर आ गए ना तुम तो तुमको लॉस नहीं हो रहा है ठीक है यू कैन ब्रेक इवन एमएससीडी तुमको लॉस नहीं करवाएगा मे बी प्रॉफिट नहीं हो रहा है मगर मिड डे तुमको अगर फालतू में बैठे बैठे ट्रेड लेना है सो इट विल नॉट गिव यू अ लॉस ठीक है और आरएसआई इज वेरी यूजफुल स्पेशली तुमको ऐसे टाइप के जैसे क्रैमर ने जो शॉर्ट किया हिंद कॉपर अभी देख लो यहाँ पर आ गया था अराउंड 63 जब 70 टच करे ना ब्लाइंड शॉट मार दो ब्लाइंड शॉट वो तो सक्सेसफुल होना ही है 70 टच करे और 80 पे तो ओवरबॉट जा ही रहा है वो तो मतलब अपर सर्किट के तरफ मतलब वो तो छोड़ ही दो 70 जा रहा है तो यू कैन शॉट बहुत इजीली शॉट हो सकता है जबकि आई थिंक यहाँ पर 69 लेवल तक गया था जहाँ क्रैमर ने शॉट किया था ठीक है सो फार सो गुड एनीथिंग एल्स सुपर सुपर ट्रेंड के बारे में जानना है सुपर ट्रेंड इज बेसिकली मतलब मैं जब भी ये कर रहा हूँ इट इज़ बेसिकली वेरिफिकेशन कि एच एफ सी एल पे देख लो या हडसन देख लो सारा रिसेंट है ये देख लो ये आ गया ये येलो लाइन आ गया तो ज़्यादा है उसके बाद नंबर 1 नंबर 2 के साथ कंपेयर करने में थोड़ा इजियर होता है ये जो गैप है दैट गैप इज ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट द गैप टू दिस हो गया एनीथिंग एल्स I can explain it one more time if you're having a problem. I had a doubt about Eller Fisher. So, what exactly does it like? How exactly does it work? You mean the maths behind it or like No, how no, to no. use Like, it? how to use it during trading? So, See, एलर फिशर तुमको एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं बताएगा इट ओनली गिव्स यू अ प्रॉपर टाइमिंग बिकॉज एलर फिशर इज लाइक द वेव्स मतलब वेव्स क्लीन एक सेकंड के लिए मैं क्लीन कर रहा हूँ ये जो वेव्स है ना यू कैन सी अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा है इवन दो इसमें भी देख लो इवन दो ओवरऑल इट इज गोइंग डाउन बट दीज अप्स एंड डाउन्स एलर फिशर विल गिव यू एग्जैक्टली दिस एलर फिशर विल परफेक्टली टाइम यू दिस कि अगर तुमको यहाँ से छोटा सा भी लॉन्ग करना है ना ये कैंडल देख लो ये 10-5 का कैंडल है ठीक है 10-5 का कैंडल 6 कहाँ गया यही वाला था ना 10-5 का कैंडल देख लो इफ यू कैन सी एलर फिशर दिस इज गिविंग अ गुड टाइमिंग ये बता दे रहा है कि यहाँ पर तुम लॉन्ग नहीं जा सकते हो एज यू कैन सी मगर यहाँ पे देख लो द मोमेंट इट स्टार्ट्स ब्रेकिंग तुम यहाँ लॉन्ग गए सो यू कैन ब्रेक इवन इवन दो एमएससीडी इज कम्प्लीटली अगेंस्ट इट एंड दीज आर द मोमेंट्स व्हेन यू कैन रियली गो फॉर इट क्योंकि यहाँ देख लो एलर फिशर ने पहले बताया कि देयर इज अ डाउनवर्ड ट्रेंड उसके बाद यू ट्राई टू बी अहेड ऑफ द कर्व क्योंकि तुमको पता है कि ये टच होने वाला है एमएससीडी तुमको वैसे उसे देख के पता है सो दिस इज द परफेक्ट टाइमिंग टू एंटर द ट्रेड सो एलर फिशर तुमको एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं बता रहा है इट इज गिविंग यू द परफेक्ट टाइमिंग कि भाई अब एंटर कर लो दिस इज गिविंग यू द बेस्ट प्राइस और आरएसआई भी यहाँ हाई थी ठीक है एलएसआई इज मोर लाइक अ हार्ट बीट ये अप डाउन होता रहता है
तो छोटे-छोटे स्कैल्पिंग के भी लिए अच्छा है, और इफ यू आर ट्राइंग टू एंटर द ट्रेड इट गिव्स यू अ वेरी गुड टाइमिंग। या फिर लाइक इफ यू आर वेटिंग पेशेंटली कि कब अच्छा अपॉर्चुनिटी आएगा, कब थोड़ा मतलब थोड़ा-सा भी टर्न होगा या डेज़ हाई पे मैं शॉर्ट करूँगा। जैसे ही वो डे का हाई आएगा ना, जैसे कि यहाँ देखो परफेक्ट है। जैसे ये डे का हाई आया, ये थोड़ा सेफ एलआर फिशर तुमको दे देगा कि भाई ये टाइम है, यहाँ तुम थोड़ा शॉर्ट कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा आ जाएगा। सो एलआर फिशर गिव्स यू अ वेरी गुड टाइमिंग ऑन इट, हम्म स्पेशली ऑन द 7। हो गया? डिड आई हाँ एक्सप्लेन ऑल ऑफ these? Anything Uh, else? yes. How do you So how select do the you stop loss? select the stocks? Is it previous day top gainers or something else? अभी तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया, लाइक इफ आई एम ट्रेडिंग ऑन 15th ऑफ जुलाई, जो कि सोचो कि अभी मार्केट ओपन नहीं हुआ है, आई विल यूज डाउनलोड्स, डोंट डॉक्स मी, डाउनलोड्स व्हिच इज 14th ऑफ जुलाई का डाउनलोड किया। सी 15th को मैंने डाउनलोड किया, मतलब कल का ट्रेड है जो कि मंडे था। ये मैं नहीं यूज करूंगा, मैं 14th का यूज करूंगा जो कि फ्राइडे का ट्रेड था। वो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था। क्योंकि ये जो होता है, हाथ सुन, ये जो होता है ये टॉप गेनर है। इसके बाद ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, दैट इज अनप्रेडिक्टेबल। फर्स्ट डे छोड़ दो, ये वीकनेस देखा, उसके बाद गिरने लगा, ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया। उसके बाद तुम अनसक्सेसफुल में भी चल जाओ। अनसक्सेसफुल, जस्ट डायल, इट वाज जस्ट डायल राइट, जस्ट डायल फॉर 31.5, 31.5 देख लो। इसके बाद उठ गया, सो दिस इज, इट कैन बी अनप्रेडिक्टेबल। 31.5, हाँ ये वाला इसके बाद उठ गया, सो इट कैन बी अनप्रेडिक्टेबल। दिस इज एग्जैक्टली वाई मैं जो दिन ट्रेड कर रहा हूँ उसके एक दिन के पहले वाले का मैं यूज कर रहा हूँ टॉप गेनर्स। अंडरस्टूड? so you just skip the days you have to wait by checking the stocks one day before so मतलब यस हाँ, क्योंकि वो सेकंड डे अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है, तो मैं हाँ सेकंड डे के बेसिस पे मैं बता सकता हूँ कि वो जो टॉप गेनर का जो वॉल्यूम आया था, वो लिक्विडिटी आया था, वो अब किस डायरेक्शन पे जाएगा। हम्म क्योंकि उनको जो भी, जिन्होंने भी खरीदा है ना, दोज मस्ट बी बुल्स, वो मस्ट बी लॉन्ग टर्म पे पुश किए होंगे या फिर इंटरडे पे पुश हुआ होगा। अभी वो जो पुश हुआ है, जो भी होल्ड कर रहे हैं या जो भी बाय कर रहे हैं, ऑब्वियसली दे वुड वांट टू एग्जिट, क्योंकि yeah मार्केट की तरफ से दैट इज ऑलरेडी स्वोलन, उससे बेटर उनको प्राइस नहीं मिल सकता है। हियर एज अ बेयर यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ देयर सिचुएशन, क्योंकि उनको एग्जिट करना है, मार्केट गिरेगा और ये उनको भी पता है। ठीक है, यू आर ट्राइंग टू यूज द पैनिक। हम्म वो जब पैनिक क्रिएट होगा तुम्हारे शॉर्ट से, यू आर ट्राइंग टू यूज दैट, वो सेल करेंगे, उसका प्रॉफिट तुम पॉकेट करोगे। हम्म गॉट इट? डिड yeah आई एक्सप्लेन जिंदल सा, और वाज आई ऑन हिंद कॉपर? you did हिंद uh, कॉपर हो गया? yeah हाँ हो गया ओके, सो लेट्स गेट टू इन्फीबीम। हाँ, इन्फीबीम इज वेरी थोड़ा वियर्ड है एक्चुअली। ये जो तुम सिंगली देखोगे ना, तो इन्फीबीम इज अ लिटिल बिट वियर्ड, क्योंकि यहाँ देखो अप हुआ, ये थोड़ा स्टेबल रहा, सेकंड डे ये दो कैंडल तो मतलब छोड़ ही दो। ऑलवेज इग्नोर दीज टू कैंडल्स फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। यहाँ पर देखो ये ड्रॉप हुआ। सो इफ यू सी दिस सिंगल हैंडेडली तुमको बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल लगेगा, बट इफ यू यूज इट एज अ रेफरेंस, इसका जो रेफरेंस यूज कर रहे हो ना, कैन यू सी देयर इज अ स्लाइट सिमिलरिटी इन द पैटर्न। ये फर्स्ट तो अपर सर्किट था, ये छोड़ दो, मगर दिस एज अ होल हैज अ स्लाइट सिमिलैरिटी टू दिस पोर्शन। सो उसके सब्सिडायरी से यू कैन शॉर्ट दिस। अगर अच्छी, ये देख लो एकदम, एलर फिशर देख लो भाई, यही यही यूज करना इंडिकेटर। एलर फिशर देख लो, तुमको परफेक्ट दिया, उसके बाद तुमने एंटर किया, एमएससीडी पे गिरा, तुमको अच्छा प्रॉफिट मिल गया। अभी इसके बाद कल और नहीं करना है इस पे शॉर्ट, क्योंकि एमएससीडी बता रहा है कि भाई अब ये उठ सकता है। ठीक है, समझ लो, इसी दिस इज एग्जैक्टली वेर यू टाइम एलर फिशर, दिस इज परफेक्टली वेर। अभी तुमको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। आई एम यूजिंग एमएस पेंट, सॉरी, क्योंकि लेट्स से these are 2 days, right? These are 2 days. अभी आई एम यूजिंग अ ब्लू लाइन। अभी क्या होता है, बहुत दिन ना ऐसे अप हुआ या ऐसे डाउन हुआ या फ्लैट गए, इट डज नॉट मैटर। हम लोग बहुत बार देखते हैं कि गैप अप ओपन होता है, राइट? गैप अप ओपन होता है। नाउ यू आर लुकिंग फॉर दिस एग्जैक्ट पैटर्न। गैप अप ओपन हुआ, इट मे बी वेंट लाइक दिस, इट मे बी वेंट हायर, कभी भी गया, कैसे भी गया, इट डज नॉट मैटर।
Second day you are looking for one and exactly one thing, that is क्या सेकेंड डे भी गैप अप ओपन हुआ या होके या फिर ओपन होने के बाद डायरेक्टली ग्रीन गया. अगर नहीं गया सो यू वेट पेशेंटली फॉर एन अपॉर्चुनिटी. लेट्स से यहाँ पर खत्म हुआ था, दिस कम्स हियर, यू वेट, क्योंकि यहाँ पर अगर गैप अप ओपन या फिर ग्रीन नहीं गया ना, ट्रस्ट मी द स्टॉक कैन नॉट सस्टेन इट. यू वेट, 1 2 3 4 जैसे रेजिस्टेंस आए, एलर फिशर देखा, टाइम किया, इट विल स्टार्ट फॉलिंग. ट्रस्ट मी, तुम खुद से ट्राई करके देख लो, क्योंकि ये मार्केट नहीं सस्टेन कर पाएगा. जो भी यहाँ थे ना गैप अप पे बेच ही देंगे, ये नहीं सस्टेन होगा अनलेस देयर इज अ ग्रीन. कहाँ गया भाई मेरा कर्सर? हाँ, अनलेस देयर इज अ ग्रीन मूवमेंट हियर ना, ये मार्केट नहीं सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि यहाँ से शॉर्ट होना शुरू हो जाएगा. ओके, यही मैं बता रहा हूँ. मे बी इट इज नॉट एज क्लोज टू अ गैप अप. एक्चुअली मेरे पास ऐसा स्टॉक था, मैं बहुत ढूंढा मगर मेरे को मिला नहीं. मेरे को एग्जैक्टली वैसा स्टॉक था. सोच लो कि ये पोजीशन नहीं, ये गैप अप ओपन हुआ, तो उसके बाद जो है ना, ये वाला पोजीशन मार्केट नहीं सस्टेन कर पाएगा इफ देयर इज जैसे कि फॉल हुआ है. उसके सेकंड डे भी मार्केट नहीं सस्टेन कर पाएगा. ऑलवेज इट विल गो बैक टू द इनिशियल पोजीशन, क्योंकि ग्रीन नहीं आ रहा है. एज अ बुल सोचो, क्या तुम ऐसा बुल इस पे होल्ड करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस आ रहा है, धीरे धीरे गिर रहा है. ऑब्वियसली तुमको गैप अप पे ऑलरेडी प्रॉफिट है, तुम प्रॉफिट बुक करके निकल जाओगे. दैट्स व्हाट यू टेक एडवांटेज ऑफ. उसके बाद आ गए टाटा कॉफी पे. टाटा कॉफी भाई कहाँ है? अच्छा है ही नहीं, मतलब रिसेंट है. Tata Coffee, yes, you look at this. Now this is very very important. ये देखो, टाटा कॉफी पे ये तुमने देख लिया, ये है, ये है वीकनेस. वीकनेस तो है, मगर मैंने जैसे कि अनसक्सेसफुल ट्रेड में दिखाया था कि यहाँ तुम मत करो. बट हियर इज द स्मॉल चेंज. तुमको सबको पता था कि मंडे क्या होने वाला है, ठीक है, सबको पता था. अभी टाटा कॉफी को तुमको मंडे के पहले देखो, ये दोनों रेड कैंडल के पहले देखो तो बहुत हाई है, राइट, इट इज वेरी हाई. अभी पूरी दुनिया को पता था कि अदानी और वो ये सब झमेले के बीच में निफ्टी डूबेगा, सबको पता था. तो यहाँ पर तुम एक सेफ शॉट ले सकते हो. मे बी सारे स्टॉक्स पे नहीं लग सकते हो, क्योंकि अब नॉर्मल है. अभी अदानी का सिचुएशन छोड़ दो, तुम प्री ओपन पे देख रहे हो कि निफ्टी लाल जा रहा है, निफ्टी मिड स्मॉल भी लाल जा रहा है, तो तुमको एक स्लाइट आइडिया हो जाता है कि आज रेड डे हो सकता है, तो तुम ये ट्रेड ले सकते हो. या फिर थोड़ी देर ये थोड़ा वेट कर लिया, यहाँ पर शायद शॉर्ट कर लिया, थोड़ा यहाँ या कुछ भी कर लिया, ये तुमको प्रॉफिट दे सकता है. बट आई वुड सजेस्ट कि ऐसे के लिए मत जाओ, क्योंकि ये मतलब एकदम बैकअप है. और ये तभी करो इफ देयर इज अ रेड डे. ओके, ये मैंने मिड स्मॉल 400 दिया रखा है सेंसेक्स की जगह. नाउ इसका एक नोट्स आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू नो व्हेन यू शुड एंटर लाइक दिस एंड व्हेन यू शुड नॉट. रेड डे हो गया वो अलग बात है, बट समटाइम्स यू जस्ट कांट. वो अभी मैं दिखाऊंगा. नेटवर्क 18, हाँ, दिस इज वेरी फनी. सी, नाउ आई विल शो यू अ वेरी डिफरेंट थिंग. ये देखो, परफेक्ट टॉप गेनर, देखो परफेक्ट वीकनेस आया, तुमको इसके भी लोअर बिलो, इसके भी लोअर बिलो, इट शुड बी अ परफेक्ट शॉट, राइट. बट परफेक्ट शॉट नहीं है, लॉस हो जाता है. कैन एनीवन टेल व्हाई? सी, द प्रॉब्लम इज, दिस इज एक्चुअली वेरी फनी. तुमको लगेगा कि ये थोड़ा वियर्ड है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये शॉट करोगे तो लॉस होगा, इवन दो इसके और नंबर वन के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है. द वन एंड वेरी सिंपल एक्चुअली फनी डिफरेंस कि इसके बारे में तुमको डरना भी नहीं है. कम हियर. सो एज यू कैन सी, इसका MIS अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है. देयर इज नो इंट्राडे ट्रेड, तो देयर इज ओनली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. तो इसके बारे में सोचो ही मत. एंड ट्रस्ट मी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पे ये वाला एल्गो उतना चलता भी नहीं. सो इट्स बेस्ट यू अवॉइड, मतलब इसके बारे में सोचो ही नहीं, क्योंकि MIS जिस पे अवेलेबल है वो स्टॉक यहाँ से लाल होके गिरेगा ही भाई, छोड़ दो उस पे. क्वेस्ट पे जाते हैं. डू हैव अ डेट फॉर दिस? नो, आई डोंट हैव अ डेट फॉर एनी ऑफ दिस. क्वेस्ट पे आ जाते हैं. एज यू कैन सी, देखो, यही मैं फर्स्ट वाले के साथ समझाने वाला था. ये देख लो, ये जो हुआ, ये आया, वीकनेस आया, बट देयर इज अ वेरी स्ट्रांग सपोर्ट. ये सुपर ट्रेंड देखो भाई, पूरा फ्लैट गया है, पूरा फ्लैट. देयर इज अ वेरी स्ट्रांग सपोर्ट. उसके बाद ये दो रेड कैंडल तुम अवॉइड ही करो, क्योंकि उसके बाद फ्लैट गया, वो अलग बात है, उठ भी सकता है. यू ट्राई टू अवॉइड दिस. दिस इज अ वेरी सिंपल नोट जो कि तुम इसके साथ कंपेयर कर सकते हो. टाटा कॉफी के ये वाले ट्रेड के साथ कंपेयर कर सकते हो. समझ में आ रहा है? और एक चीज है, आई वेट,
मतलब यूजुअली रेड डेज पे तुम कर सकते हो, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट व्हेन यू शुड अवॉइड दिस इज, अरे अभी सोचो ये जो पोजीशन है यहाँ पर से इंस्टेड ऑफ दिस, ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस शिट, अगर तुमको स्लाइट मूवमेंट यहाँ पर मिलता, थोड़ा सा भी स्लाइट मूवमेंट मिलता, एंड इसका मूवमेंट फोकस मत करो ज्यादा, यू फोकस हियर, ठीक है, यू फोकस ऑन दिस ब्लू सुपर ट्रेंड लाइन। अगर ये भी मूव होता है देन यू कैन नॉट एंटर, बिकॉज वो वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट डे तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, गिरने नहीं वाला है, मतलब गिरने के चांसेस बहुत कम है। यू रियली हैव टू फोकस ऑन दिस। ये पूरा फ्लैट लाइन जा रहा है, तो तुमको वो जैसे ही वो उठने लगा ना तब रिस्क है, तब नहीं जा सकते हो गया। नंबर 5 पे थे ना हम लोग, या फिर या क्वेस्ट, देन कम्स क्वेस्ट। भाई कहाँ था मैं गजनी हूँ, प्लीज हेल्प। अच्छा या क्वेस्ट, अच्छा क्वेस्ट। क्वेस्ट बता रहा था, अरे मैं गजनी हूँ भाई। अच्छा ये तो हो गया, ये तो अभी मैंने बताया, क्योंकि ये फ्लैट लाइन है, ये सुपर ट्रेंड भी पूरा फ्लैट जा रहा है। ट्राई मतलब ये कर सकते हो, ये रेड डे पे कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि यू अवॉइड दिस, क्योंकि इतना फ्लैट जा रहा है। अगर थोड़ा सा भी ये गिरने लगा, सुपर ट्रेंड फॉलो किया, ये गिरने लगा, तो यू कैन डेफिनेटली सेकंड डे पे तुम जा सकते हो, क्योंकि ये बाकी तरफ से ये परफेक्ट है, मगर यहाँ पर बहुत स्ट्रांग सपोर्ट बन रहा है। सो अगर तुम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरफ से सोचो कि यहाँ सारे तो बंदे पागल नहीं होंगे, कोई तो यहाँ पर जब बेचा जा रहा है, ये जो रेड कैंडल जा रहा है, कोई तो इसको सपोर्ट करे जा रहा है, कोई तो खरीदे जा रहा है, मतलब किसी को थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस होगा। सो ये दो रेड कैंडल नहीं आते तो ये आई एम श्योर कि ये उठता, ये छोड़ दो। तो थोड़ा सा सपोर्ट है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है मार्केट में, तुम उस पे इट्स बेटर टू नॉट गो, हैव टू थिंक एज अ बुल। अभी लेट्स कम टू जीपीपीएल। गिव मी अ सेकंड, आई हैव टू ड्रिंक सम वाटर। Now GPPL, do I have a date for this now? GPPL, what did I even have to explain? Yes, you come here. अभी this is really weird. अभी you compare this to the backup trade जो कि मैंने आई गेस इन्फीबीम और इस पे दिखाया था। कम हियर, अभी देख लो, यहाँ पर तुमने सोचा कि इस पे या इस पे कर लिया, ये तुमको प्रॉफिट आ गया, या फिर तुम अगर थर्ड डे के लिए वेट करते हो, यू लुक एट दिस, ये जो अब जा रहा है, ये फ्लैट जा रहा है, दिस इज अ वेरी स्लाइट नोट, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि तुमको एग्जैक्ट ट्रेड नहीं मिलेगा, तुमको इसका और नंबर 2 का मिक्स मिल जाएगा, मतलब दोनों के बीच में ये थोड़ा अब गया, उसके बाद ये ऐसा, या फिर गैप अप होके अब गया, उसके बाद ऐसा आके फ्लैट हुआ, और उसके बाद थोड़ा वीकनेस दिखाया, सो यू आर नॉट एग्जैक्टली श्योर। सो देयर आई वुड सजेस्ट कि सुपर ट्रेंड इज वेरी यूजफुल। अगर ये फ्लैट लाइन जा रहा है सो ट्राई नॉट। अगर ये ऐसे कि येलो येलो तो ये बाद में हो, ये उस दिन येलो नहीं हुआ, जी अगले दिन के ओपन पे येलो हुआ है, उस दिन ये पूरा फ्लैट था, तो उस दिन आई वुड सजेस्ट ये जो दो है ना, इन ये अबनॉर्मल है, इनको मतलब अवॉइड ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं होते तो ये देख लो, ये ग्रीन मूवमेंट है, इसके बाद तुम शॉर्ट करते तो तुम्हारा लॉस होता, समझ रहे हो? ये छोटी सी चीज तुमको मतलब समझनी पड़ेगी। उसके बाद ऑयल में आ जाता है, आई थिंक ऑयल वाज इम्पोर्टेंट। ऑयल, आई थिंक 4-6, आई थिंक 4-6, 4-6 फॉर ऑयल। यस हाँ, यही चीज मैं ये इसका वैसा कुछ नहीं है, यू हैव टू लुक एट दिस एग्जैक्ट थिंग, दिस स्लाइट पैटर्न, ये जो मैंने अभी हाईलाइट किया, ये जो स्लाइट पैटर्न है ना, ये थोड़े थोड़े अपवर्ड मूवमेंट है। अभी बहुत बार ऐसा होता है कि यू सी दिस एग्जैक्ट हैंड, ये जो अपवर्ड है, अभी मैं इस पे चल जाता हूँ, इनफैक्ट आई शो यू द स्ट्रॉन्गेस्ट आलोकिंट्स का जो आज 5.6 गिरा है, अभी ये देख लो, इस पे ऐसा आ रहा है, ठीक है, अभी ये तुमको बहुत स्ट्रांग लग रहा है कि हाँ भाई ये तो कल मैं शॉर्ट कर ही सकता हूँ, मगर अगर उस पे ये आ गया, ये ऑयल वाले, ये छोटे छोटे कहाँ गए भाई, हाँ ये आ गया ना, देन डोंट शॉर्ट इट, क्योंकि वहाँ ये अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो गया, इवन दो, क्योंकि बहुत बार ऐसा लगता है ना कि ये इग्नोर करो, सोचो एकदम वर्टिकली आ रहा है भाई, यहाँ से एकदम ऊपर से चढ़ के आ रहा है, और फिर ये मूवमेंट हुआ ना, तो तुमको लगेगा कि ये तो लास्ट पे था, और उसके बाद लास्ट में रेड आना चालू हो गया, बट आई वुड सजेस्ट डोंट गो, क्योंकि ओवरऑल मूवमेंट ना यही आ रहा है, और सुपर ट्रेंड भी वही बता रहा है। सो आई वुड रियली, और यहाँ पर तुम थोड़ा आरएसआई भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है, आरएसआई भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ। सो दैट इज वेयर यू कैन रियली अवॉइड दिस, क्योंकि ये जो मूवमेंट है ना, ये बहुत रिस्की होता है, यहाँ पर मेरा एक बार लॉस भी होता है ऐसे करके देख के, क्योंकि अगर तुम ओवरऑल देखो,
तो ये मूवमेंट आया, तुमको सच में लग सकता है बहुत बार, क्योंकि ये तुमको दिख रहा है कि ग्रीन है, मगर जब नहीं दिखेगा तो तुमको लग सकता है कि नेक्स्ट डे यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ से फॉलो होना चालू होगा, क्योंकि ये तो रेड रेड आ रहा था, यहाँ तो वीकनेस है। बट वैसा नहीं होता, क्योंकि तुमको ये वाला चीज देखना पड़ेगा। ओवरऑल यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर जब एंड हो रहा है तो टोटल ग्रीन ही है। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे डिटेल्स यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि 90% मार्केट बुल जा रहा है। अभी एज अ बेयर तुमको इतना करना पड़ेगा। नाउ आलोकेंट्स, दिस इज वेरी वियर्ड, दिस इज बेसिकली प्रूफ मटेरियल। अभी आलोकेंट्स को देख लो, ये है, उसके बाद टॉप गेनर आया, उसके बाद ये आया, स्ट्रॉन्ग वीकनेस है, यहाँ यहाँ भी गिर गया, यहाँ भी गिर गया। सो दिस इज परफेक्ट नंबर 1 मटेरियल। नाउ आई हैव ओनली केप्ट दिस, क्योंकि मैं बता दे रहा हूँ, कल मैं एग्जैक्टली इसी पे ट्रेड करूंगा, यही मैं कल बेचूंगा, टू प्रूव यू कि ये सब ना मैंने फालतू में कलेक्ट नहीं किया, जो मेरा प्रॉफिट्स आया वो सब मैंने, आई एम ट्राइंग टू प्रूव कि ये मेथड वर्क्स, इसीलिए रिकॉर्ड कर लो, मैं कल यही ट्रेड करूंगा। ओके, and I guess that's basically it. These were all the 5 parts of how I shot. I know ज़्यादा formula नहीं है, I don't do maths, ज़्यादा calculation नहीं है, this is all practical, मतलब थोड़ा दिमाग से सोच लेते हैं। So any questions, any confusions, anything you wanna ask? Anyone text पे भी कर लो, YOLO trades पे भी ask कर लो। Okay, then I'm ending this because I'm basically done. Then I'm ending the stream. Bye. Thank you, man. Thank you, Thanks. bro. Very good Hmm. content.